मोहब्बत की शादी में शक की दरार ने 23 साला आबदा की जान ले ली। बैरून मुल्क से वापस आकर अल्ताफ़ ने क्यों बनाई प्लानिंग अपनी ही बीवी के कत्ल की। अल्ताफ़ के भाई अब्बास का था इस वारदात में क्या किरदार, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आबदा बीबी जो अपने घर में मौजूद होती है उसे कत्ल किया जाता है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही खावंद होता है। वजूहात क्या थी? वालिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि सुल्तान साहब उस वक्त इसी घर में मौजूद थे और यही जाए वकूआ है। वजूहात क्या थीं? शादी को तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं जो कि उस वक्त स्कूल गए थे। और स्कूल कौन छोड़ने गया था? जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो स्कूल छोड़ने भी वही शख्स गया था। वालिद हैं आप, मौजूद थे आप यहाँ पर? क्या मामला था, क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई? झगड़ा ये सी जी, मेरी बच्ची पहले 11 कत्ल होए सी, बच्ची ते बच्चा एक बच्चे सी। अच्छा, उस तो हट के सर बच्ची दे नां 6 किੱਲੇ रकबा सी ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਜੀ। 3 ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ, ਰਕਬਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਅਲਤਾਫ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। कितने अरसे से बाहर है ये और वहाँ क्या करता था, क्या कमाता था वहाँ? ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ड्राइवर था वहाँ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰੇ ਮਾੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸੜਨ ਦੀਆਂ। तशद्दुद भी करता रहा, किस तरह का हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਬਸ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, 10-12 ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਵੇਚ ਕੇ क्या मकान ये आपने बेटी को लेकर दिया हुआ था और वो चाहता था कि ये मकान मेरे नाम कर दे या बेच दे? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। वहाँ उसके मामला ठीक नहीं थे, पैसे वैसे भेजता था घर में? ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। शादी के बाद से वो इसी घर में रह रही थी? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਅਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੂਆ ਲਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕੋ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਰ ਅੜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3। ਚੌਥਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਬਾਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 70 ਫੁੱਟ ਲਾ ਲਓ। अब्बास बड़ा भाई? ਵੱਡਾ ਭਾਈ, बड़ा भाई साथ था, लाने वाला वही था? ਲਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 18 फरवरी 2021 को हम अपने इलाके में गश्त पर ममूर थे। बज़रिया 15 तकरीबन 11 बजे कॉल मसूल होती है कि मेरी हमशीरों को उसके खामद ने फायर मार के कत्ल कर दिया। इतला वकूआ पाकर गफूर टाउन मुस्लिम टाउन पहुँचते हैं तो मौका पर देखा कि एक ख़ातून चारपाई पर लेटी हुई थी जिसे बवजह फायर आर्म उसकी डेथ हो चुकी थी। कितने फायर लगे थे? उसे 3 खौल वहाँ से बरामद हुए थे। तीन मेजर इंजरीज थी। 3 फायर आर्म्स थे जो ख़ातून को हिट हुए। तो उसके बाद हमने PFSA की टीम को बुलवाया। वहाँ पे जो लोगों ने फ़र्स्ट वर्शन दिया 15 की कॉल वो यही था कि उसका शोहर जो कि बैरून मुल्क मुकीम होता है अल्ताफ़, वो रात हमारे यहाँ ही रिहाइश पजीर था। बेसिकली अल्ताफ़ 53 WB का रहायशी है। रात हमारे घर रिहाइश पजीर था। सुबह उठते ही आपस में तू तकरार शुरू हुई। इससे पहले आबदा तस्वर का पिछले खामन से एक बेटा था, जबकि अल्ताफ़ की भी ये दूसरी शादी है। जो कि आबदा के वालिद हैं, उनकी वालदा हैं और भाई हैं, उनके मुताबिक भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि अल्ताफ़ अपने भाई के साथ आता है जिसका नाम अब्बास है। अब्बास ही उसे लेकर आने वाला था बाइक के ऊपर। लेकिन जो आपको पहली इत्तला मिलती है उसके मुताबिक क्या कहा जाता है, कितने लोग आए थे और किस तरह से ये कार्रवाई की गई? ये बज़रिया 15 जो कॉल मसूल हुई थी वो ये थी कि मेरी बहन के खामद ने, हमशीरा के खामद ने मेरी बहन को कत्ल कर दिया है। फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन ये थी। जब हम मौका पर पहुँचे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ बातें सामने आईं। तो जब ये बात सामने आई दौरान तफ्तीश के अल्ताफ़ उस घर में ही मौजूद रहा था उस रात, जिस रात से अगले दिन ये वकूआ सरज़द हुआ है, तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी बातों को क्लियर कर देता है। जब FIR लॉन्च होती है 2 बंदों के ख़िलाफ़ तो मरकज़ी मुलज़िम जो अल्ताफ़ था उसको अरेस्ट करके तफ्तीश अमल में लाई जाती है। उससे आले कत्ल पिस्टल 30 बोर भी रिकवर कर लिया जाता है जो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए PFS लेबॉर्ट्री भिजवाया जा चुका है। जबकि मुलज़िम हमराई मुलज़िम जिसको FIR में दर्ज करवाया गया था उसकी किया जाता है, उसकी तफ्तीश भी चल रही है। उसने सेशन कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा रखी है जिसकी तफ्तीश जारी है। जो भी हक़ायक़ दौरान तफ्तीश सामने आएंगे तो इसकी हद तक तफ्तीश को मुकम्मल यकसू किया जाएगा। मैं जी अपने भाई के घर था और मेरे वाल साहब गए हैं और वाल साहब ने बताया कि सिस्टर तुम्हारी को कत्ल हो गया। हम भाग के आए हैं घर और अल्ताफ़ जो है मार के और बास दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे नहर की तरफ। तो मैं घर पहुंचा तो सिस्टर बहुत हो गई। सिस्टर को देखा था, हालत क्या थी उसकी उस वक्त? हालत बिल्कुल दूसरा ख़त्म हो गई थी। कितने फायर लगे थे? फायर उसको 3 लगे हुए थे। 3 फायर लगे थे निशाने पर। उसने फायर किए और उसके बाद दोनों भाग गए। दोनों भाग गए जी। मैंने अपनी आंखों से देखा वो भाग रहे थे मोटरसाइकिल पे, अब्बास और अल्ताफ़। अच्छा मुझे ये बताएं, भाई हैं, बहन के साथ मामलात कैसे थे? खावंद के अल्ताफ़ के कैसे मामलात थे? कोई झगड़ा था, कोई लड़ाई थी, मामलात क्या थे? जी बाहर से आया, कोई भी झगड़ा नहीं करा। उसके मारने के पहले 2 दिन बाद झगड़ा किया उसने कि ये जो प्लाट है ना वो मेरे नाम करवा दो, जो बेच दो इसे, तो हम वो कहा यहीं पे कारोबार करते हैं, यहीं पे बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पर वो आ गया था कुछ तकरीबन 2 माह पहले आया था। हाँ 2 माह पहले 2 माह पहले आ गया तो यहाँ आकर कोई काम नहीं करता था? कोई काम ही नहीं करता था जी, पहले ही फिरता। सही जी वो क्या यही बात तो सिलसिले बहन आपकी अपने घर में रह रही थी, ना कि उसके घर में? अपने घर में। घर नहीं लेकर जाता था? नहीं, अब यहीं पर होते थे? हम जाने नहीं देते थे उसके घर में। अपने इधर ही हमने घर बना के दिया उसको कि इधर ही रहो आप दोनों। वो फिर भी क्या आपसे कोई बात की अल्ताफ़ ने कभी आकर? कोई मामला उसके जहन में अगर कोई था तो आप लोगों से आकर कोई डिस्कस किया, बताया? जी हमारे साथ नहीं डिस्कस करता था, अपनी बेगम को ही कहता था कि ये ज़मीन जो प्लाट है ना मेरे नाम करवा दो, जब बेच दो। हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं ऐसी करता था जी। उसके अलावा कोई बात नहीं थी? आपको यही लगता है वो ये ही मामला था जी जो प्लॉट के हवाले से था, मकान के हवाले से था, कोई और चीज़ें नहीं है? उसके घर वाले बाकी क्या कहते हैं? उसके बाद कोई आप लोगों से मुलाकात हुई? आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस हवाले से कि सुलह कर ली जाए या धमकियां दी जा रही हैं? उनके घर में और कौन कौन लोग हैं? उसकी एक वालदा है जी, एक उसकी दूसरी बेगम है, एक 2 उसके भाई हैं, तो एक वालिद है उसका।
ये 5-6 लोग हैं उनके, और बच्चे हैं उसके बड़े भाई के। वो दूसरा, हम पुलिस थाने जाते हैं और वो कसम न्या लेते हैं कि हम कसम देते हैं इसकी ये नहीं साथ था, और हाँ कत्ल न्या का कोई कसम न्या होता नहीं है जी। यही हमें धमकियाँ दे रहे हैं। हम पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, हम गरीब लोग हैं। आपको दी किसी ने धमकी? आए यहाँ पर, उसके बाद कोई आया यहाँ पर इस सारे वाक़ये के बाद? नहीं जी, इधर कोई भी नहीं आया फिर इस वाक़ये के बाद। 18 फरवरी का नाज़रीन ये वाक़या है। थाना पुलिस दानेवाल को ये इत्तला मिलती है कि एक खातून को उसके अपने घर में फ़ायर मारे गए हैं, और फ़ायर मारने वाला कोई और शख्स नहीं, उसका अपना ही खावन था। ये वो पहली इत्तला थी जो कि दी गई थी पुलिस को 15 के ऊपर। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही थी? ये जो शादी थी आबदा की और अल्ताफ़ की, ये छुपके की हुई थी। अल्ताफ़ ने कितना अर्सा पहले, तकरीबन 6 साल पहले ये शादी की थी, लेकिन उसने अपने भाइयों को, अपने घर वालों को नहीं बताया था, अपनी पहली बीवी को भी नहीं बताया हुआ था। पहली बीवी को भी नहीं बताया था, अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। लेकिन इसके साथ उसका अच्छा रवैया था बकौल लड़की के घर वालों के, कि इसके साथ इसकी मोहब्बत की शादी थी, उसमें से एक बच्चा भी है और इनका आपस में मामलात भी अच्छे थे। अब लेकिन उस पर उसके जो लड़की के वालिदैन हैं वो यही कहते हैं कि वो ये चाहता था कि ये घर जो है वो तकरीबन 10 मरले का घर बनता है, वो बना हुआ है, शहर के अंदर घर है, तो वो घर बेच के जो है वो बिज़नेस किया जाए। वो घर किसका था और किसने दिया था वो घर? वो घर जो है वो लड़की का था, और लड़की की वालदा ने ही उसे दिया है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे, चूँकि वो एक्चुअल तो वो गांव में रहते हैं 16 चक में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को घर बना के दिया था, और अपने ख़ुद भी अपनी बेटी के पास आते जाते रहते थे। उस दिन भी यही सूरत हाल हुई है कि आबदा जो है वो अपने घर के सेन में ही मौजूद है, चारपाई पे बैठी हुई है। तो बकौल इनके के 2 लोग आए हैं, जिसमें अल्ताफ़ है जो उसका खामिद है, और उसके साथ अब्बास भी मौजूद है जो इसका बड़ा भाई है। लेकिन आते ही फायर मारा है, जो 3 फायर लगे हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन में भी बात सामने है, खौल भी वहाँ से पुलिस को मिले, वो तीनों खौल जो है वहाँ से बरामद हुए। आप तो उस वक्त मोबाइल यूज़ कर रही थी, क्या यही अनाथ था कि मोबाइल क्यों यूज़ करती है? नहीं, इसमें और चीज़ भी सामने आई है कि जैसे मुलज़म ने भी अपने बयान के अंदर ये बात को इकरार किया है कि मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से इस चीज़ का मुझे बताया जा रहा था कि आपकी जो बीवी है आबदा, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। तो अब उसने ख़ुद भी ये इस बात का कहा कि मैं 1 महीना यहाँ पे छुप के रहा हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें देखी, फिर मैं वापस चला गया मस्कत में। तो अब 6 साल में ये शख्स अल्ताफ़ अपनी बीवी आबदा के पास कितनी दफ़ा आया है, कितना अर्सा यहाँ पर रहा था? इसमें जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो तो है 2 या 3 मरतबा, चूँकि वो 2-2, 2.5 साल के हैं। हाँ जी, इतने गैप के साथ वो आता था और शक भी करता था। जब ये वारदात की है आपके भाई ने, उस वक्त आप साथ थे, आप ही लेकर आए थे? मैं उनके साथ नहीं था। उसको मैंने ये भी कहा कि अभी जो तूने ये किया है ये गलत किया, अच्छा नहीं किया, अगर कर लिया है तो भाग दौड़ नहीं, जाके पेश हो जा। अब्बास अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त अबूरी ज़मानत पर हैं और थाने के बाहर ही हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अल्ताफ़ के बड़े भाई हैं। वाक़या क्या हुआ था? अल्ताफ़ बैरून मुल्क से वापस कब आया था, और ये जो तमाम चीज़ है उसमें इनका क्या किरदार था? थोड़ा बताएंगे अब्बास भाई इस हवाले से। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप नामज़द भी हैं, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब ये वारदात की है आपके भाई ने, उस वक्त आप साथ थे, आप ही लेकर आए थे, क्या मामला थे? नहीं सर, मैं उनके साथ नहीं था। इस वकूए के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, नज़दीक दूर तक। अच्छा। मैं उस टाइम अपने घर में मौजूद था। मुझे भाई दबे किसी लड़के ने कॉल की कि आपके भाई ने ये काम कर दिया है। मुझे उस वक्त पता चला। किस टाइम कॉल आई थी आपको ये वाली? तकरीबन नज़दीक 12 बजे के। और ये वाक़या कब हुआ है? ये तो तकरीबन 11 बजे हुआ है। वाक़या ये इधर लिखा हुआ है कि 11:30 बजे का, FIR पे जो लिखा हुआ है। लेकिन भाई के बकौल के मैं इधर वकूआ की जगह से निकल के आगे 9 चक आता है, उससे आगे निकल के उसके बाद उसने कॉल की किसी लड़के को। उस लड़के ने फिर मुझे फ़ोन किया। मुझे पता चला, मेरे मोबाइल में लोड नहीं था। मैं किराना की दुकान साथ ही उधर गया लोड करवाने के लिए।
वहाँ से मैंने लोड करवा के अपने भाई को कॉल की कि तूने ये क्या किया, बुरा भला कहा, नाराज़ हुआ। आपकी बात हुई थी उस वक्त भाई से? मेरे भाई से बात हुई थी। अच्छा, सही। तकरीब ये कितनी देर की बात है? उस वाक़ये से 11:30 अगर वाक़या होता है, उससे कितनी देर बाद आपकी बात हुई थी मुझे कॉल और क्या आई- कहा गया था? मुझे कॉल आई तकरीबन 12 बजे के करीब। 12:07 पे मैंने लोड करवाया। उसके फ़ौरन बाद भाई को कॉल की है। उसको मैंने बुरा भला कहा, नाराज़ हुआ, और उसको मैंने ये भी कहा कि अभी जो तूने ये किया है ये गलत किया, अच्छा नहीं किया, अगर कर लिया है तो भाग दौड़ नहीं, जाके पेश हो जा। सही। 5-6 साल हो गए थे शादी को, बच्चे भी हैं, अल्ताफ़ आपके भाई और आबदा का। आपको नहीं पता था इस हवाले से चीज़ों का, और इनके मामलात क्या थे? सर इसने चोरी शादी की थी। आपको नहीं पता था? हमारी जब घर में किसी को नहीं पता था? किसी को भी नहीं पता था। जब ये 2017 में सऊदीया छोड़ के आ गया था, 2016 में हमने इसकी शादी की थी। अच्छा। हम सऊदी अरब चले गए इकट्ठे, मैं और अल्ताफ़ दोनों एक ही फ़्लाइट पे। ये 2017 में छोड़ के आ गया। उसके आने के बाद हमारे घर में एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई कि आपके भाई ने शादी की हुई है, उससे एक बेटा भी है। उसके बाद हमको पता चला कि उसने शादी भी की हुई है। आपके भाई ने आपको नहीं बताया था इस हवाले से कि उसने निकाह किया हुआ है, उसने शादी की हुई है और उसी खातून के घर वो रहता भी है जाकर? नहीं, उसने हमको ये नहीं बताया था कि उसने निकाह किया हुआ है। हमने उसकी अपनी खाला की बेटी के साथ शादी की थी। हम तकरीबन 4 माह की छुट्टी पे सऊदीया से आए थे। ओमान से 27 जनवरी को आया है और सीधा उसी बेगम के घर गया। आपको तो हमको पता था ना उसने शादी की है, उधर आता जाता है, उससे एक बेटा है, इससे एक बेटी है, इसकी खाला की 17 में आप लोगों को पता चल गया था कि उसने शादी की हुई है? 17 में हमको पता चल गया था कि उसने शादी की हुई है। उसके बाद उसका आना जाना भी होता था, लेकिन इस दफ़ा जब वो आया है जनवरी में आपके कहने के मुताबिक, उसके बाद वो आप लोगों के पास नहीं आया? आप लोगों को नहीं पता कि आपके इल्म में भी नहीं दिया उसने? डायरेक्ट वो अपनी बीवी के घर गया था, दूसरी बीवी के घर गया था? नहीं, हमारे इल्म में है कि वो आ रहा है, लेकिन मैं उसको रोक रहा था कि तू नहीं आ, मेरा वीज़ा निकलवा दे, मुझे उधर पहुंचा दे। हमारा उधर कारोबार था ना, मेरा वीज़ा निकलवा दे, मुझे उधर पहुंचा दे, फिर तू आ जाना। वो बोलता है कि मैं 10-20 दिन रह के वापस आ जाऊंगा। वो 27 जनवरी को आया है, सीधा इन्हीं के घर आया है, साले के घर गया है या बेगम के घर गया है, रात इधर रहा है, दिन को घर गया है। ये 27 तारीख से लेके 18 तारीख तक तकरीबन 3 रात या 4 रात उधर तकरीबन गाँव में गया है। DSP सदर विहाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अफजल साहब। इस केस के हवाले से पूछना चाहूँगा। 18 तारीख को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। वो शख्स जो कि तकरीबन 1 माह कबल आया था पाकिस्तान, उसने अपनी रिटर्न टिकट भी कंफर्म की हुई थी। क्या चीज़ें लग रही थी? उसका ये प्लान में शामिल था ये चीज़ कि वो यहाँ पर आया है, उसने ये कत्ल करना है और उसके बाद वापस भाग जाना है? इसमें ये जो 18 फरवरी को वक़ूआ हुआ है, इसमें गफूराबाद में ये इंसिडेंट की रिपोर्ट हमें मिली थी विद 115 कॉल कि वहाँ पे आबदा नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है। तो फ़ौरन हम लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे, क्राइम सीन पे। तो वहाँ पे मालूम हुआ कि उसको मर्डर किया है उसके खामद ने, अल्ताफ़ ने। फिर वो उस वक्त फ़रार हो गया मौके से। उस पर हमने काफ़ी वर्कआउट किया, ट्रैवल हिस्ट्री भी ली, FIA की हेल्प ली, उसका ID कार्ड, उसका पासपोर्ट हमने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजा। तो वहाँ से हमें पता चला कि 27/1/2021 को ये PK की फ़्लाइट से पाकिस्तान एयरलाइन से वो यहाँ पे आया था दुबई से, और इसने वापस भी सीट कराई हुई थी जाने के लिए। तो बज़ाहिर ही लग रहा है उसके जहन के अंदर ये प्लान होगा कि उसने ये एक्ट करना है, जो कि एक ब्रूटल एक्ट है। ये इज़्ज़त के नाम पे, ऑनर किलिंग के नाम पे किया है उसने, बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इसकी ये इनफैक्ट ये दूसरी मोहब्बत की शादी थी। पहली इसकी फैमिली में इसकी शादी हुई थी, तो दूसरी ये शादी की हुई थी और पहली बीवी से इसको छुपाया हुआ था। तो इस पर इसको शुबा था कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, लेकिन इसके पास कोई प्रूफ नहीं थे। आधा इन्हों मार दे, जो कुछ होए और आई सुबह आधे मैं संभाल ली ताकि टोक दे पैर मेरे बजदियां ताई ना दोवें निकल गए ने। मैं घर सी मैं माया लैन उसे दे कपड़े मेरी दी तोते ने ते माया लैन में जांदी पी मैं उत्थे गई सामने अगू आए ने, वो भज के अंदर वड़ गया है। मेरा बंदा बात आज तार अड़ी है मशीन दी जेड़ी बोर्ड वाली लगी हुई सी, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਅੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਇਸੂ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਅੜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
फायर किने कीते ਫੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਯਕਦਮ 3-4 ਹੋ ਗਏ ਫੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 3-4 ਫੈਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਪਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਈ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕ ਢੋਲ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲਾ ਹੈ, ਇਲਤਾਫ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੜ ਮੈਂ ਵੱਜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮੁੜ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਖਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੁੱਡਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਤਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅਬਾਸ, ਰੋਲਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਾ ਇਹ ਸੀ, ਆਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਸ का ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਤੂੰ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਵੇਚ, ਤੂੰ ਆਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾ ਵੇਚ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੋਲਾ हाथे ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ कोई ना मामला सी से उसे कत्ल किया गया दिन दिहाड़े। 11 बजे का टाइम था जब वो शख्स अल्ताफ़ अपने भाई अब्बास के साथ आता है और आकर फायरिंग शुरू कर देता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए थे जब ये सारा वाक़या पेश आता है। गिरफ़्तार भी कर लिया, उसके बाद उसने ये कन्फेस भी कर लिया कि मैंने ही कत्ल किया था। उसके बयान में क्या चीज़ें सामने आई हैं कि वजह अनाथ क्या थी अपनी बीवी को, जिससे उसने लव मैरिज की थी, अपने घर वालों को भी नहीं बताया था और छुप के शादी की हुई थी। अब वो आता है तकरीबन एक माह कबल, तकरीबन 1-1.5 माह कबल वो आता है पाकिस्तान और उसी के पास रह रहा होता है। अनाथ क्या था, वजह क्या थी कि उसी को उसने कत्ल कर दिया? जी, वजह नाथ जो लवाहकीन, बच्ची के लवाहकीन और मकतूला के लवाहकीन ने बतलाई भी और बाद में FIR में भी दर्ज कराई, वो ये बताई जाती थी कि अल्ताफ़ इनसे घर का और प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रहा था खातून आबदा तसव्वुर से। जबकि जब मुलज़िम अल्ताफ़ को अरेस्ट किया जाता है और उससे तफ्तीश अमल में लाई जाती है तो मुलज़िम अल्ताफ़ ये बयानी होता है कि मेरी पसंद की शादी थी, मैंने बीवी को अलहदा रखा हुआ था पहली साबिक़ा बीवी से, मुझे बैरून मुल्क इतलात आ रही थी कि मेरी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, तो मुझे जब इन ऐसी बातें लोगों ने बताई कि मेरी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, मैं पाकिस्तान वापस आया, अपने घर वालों को बताया बगैर 1 माह यहाँ रहा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैं फिर वापस चला गया और तकरीबन 1.5-2 साल बाद अब दोबारा जब वापस आया हूँ तो मुझे वही बातें दोबारा से पिंच कर रही थी कि मेरी बीवी का किरदार नहीं ठीक, इसके किसी और के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा है। तो इस रंज में इस बात को मैंने बेस बनाते हुए मैंने ये स्टेप लिया है। अब मैं अपने इस काम किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये उसने वर्शन दिया था अल्ताफ़ ने, ये उसका बयान था। लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं उसकी तरफ से कि कौन शख्स था जिसके साथ अगर उसके ताल्लुकात थे, या सिर्फ शक था और शक की बुनियाद पर इतना बड़ा स्टेप उसने उठा लिया कि जाकर कत्ल कर दिया? जी, ऐसा अल्ताफ़ ने ना तो किसी शख्स का नाम लिया और ना ही उसके बारे में कोई हमें सबूत प्रोवाइड किए। SHO थाना दानेवाल मोहम्मद अब्बास साहब जिन्होंने कार्रवाई करते हुए जो मरकज़ी मुलज़िम है अल्ताफ़, उसे गिरफ़्तार किया और उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया, जिसके मुताबिक उसका यही कहना है कि ये कत्ल उसने किसी और अनाथ में नहीं किया, उसे शक था अपनी बीवी पर और वो शक कोई 1 दिन या 2 दिन पुराना नहीं था, तकरीबन 2 साल से उसे शक था। और जब वो आया है तकरीबन 1.5-2 साल के बाद तो वो उसे ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो उसी शक की बुनियाद पर उसने ये इंतहाई स्टेप उठाया। इनफैक्ट ये दूसरी मोहब्बत की शादी थी, पहली इसकी फैमिली में इसकी शादी हुई थी तो दूसरी ये शादी की हुई थी और पहली बीवी से इसको छुपाया हुआ था, तो इस पर इसको शुबा था कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है। बकौल इनके के 2 लोग आए हैं जिसमें अल्ताफ़ है जो उसका खामिद है और उसके साथ अब्बास भी मौजूद है जो उसका बड़ा भाई है।
सारी वारदात हो गई, पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम अल्ताफ़ है उसे गिरफ़्तार भी कर लिया, उसके बाद भी धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗਰ ਘਰ ਰਾਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦੇ ਕਦੀ ਉੱਦੇਦਾਰ ਪਦਾਰ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਫਸ ਮਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਾਰ ਲਵਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਬੈਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ चलेगा सरकार। और ये घर मेरे पीछे देख रहे हैं, यही घर था जहाँ पर वो दाखिल होता है। दिन दिहाड़े 11 बजे का वक्त है, यहाँ पर अंदर दाखिल होता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। 4-5 फायर खोलता है जो कि उसकी अपनी बीवी को लगते हैं और वो मौके पर जाँ बहक हो जाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे दो, उस वक्त स्कूल वो खुद छोड़ कर आया था। इन दोनों का, मियाँ बीवी का, आपस में कोई झगड़ा हुआ था उस रात को? नहीं, एक दिन पहले झगड़ा हुआ था इसी बात पर, हाँ, इससे घर के मामले के ऊपर। घर के मामले ने भी जगह मेरे ना करवा दी। अच्छा, कोई और जो बातें आ रही हैं सामने, उसमें क्या हकीकत है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ? वो जो मर्जी लवाई जावे जी, वो तो जो चोर होंदा वो तो कहता भी फलाना भी मेरे नाल है, फलाना काम भी सी, इंदे च ढिमका काम भी सी, ठीक है जी। वरना मेरी बच्ची माशाल्लाह पढ़ती सी, पढ़ी हुई सी, कुराने पाक भी पढ़ी सी, ऐतां पढ़दी पई सी, ਇੱਥੇ मोबाइल ਤੇ ऐतां पढ़ी ਜਾਂਦੀ है। ਜਦੋਂ ने फैर मारे वो बाहर निकल गया, अगों मेरे दोवें बच्चे आए ने भज के, मैं रोंदा रोंदे निकल गया। मेरी बेगम आई, मेरे बच्चे आए ने, आखे अबू की हो गया, अबू की हो गया। मैं क्या करके अल्ताफ से आवाज़ फैर मार के भज गए ने। ये अगों दी होए ने, इन्हां ने दोवें ने वेखे ने, मेरे नवीद सैन ते बाबर सुल्तान ने। मेरी नौं भी सिरों नंगी हुए भज भी, मेरे निक्के निक्के दोवें दोतरे मेरे स्कूल च सी, के लिए, आपकी बेटी को बचाने के लिए। हाँ जी, मेरी नौं भी मगर भज भी, लेकिन हालत नहीं थी। नहीं जी, मैं आया कला, मैं आके देखा, मैं पानी छानी मूँह च पाना, शायद बच गई होए, अगे आया तो बच्ची खत्म होई पई है। मेरी नौं भी रोंदी रोंदी आ गई जी। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। 22-23 दिन हो गए थे उसको यहाँ पर आए हुए पाकिस्तान। उसके बाद उसने ये वारदात रचाई है। उस दौरान आपके पास भी रहा है, वो आपके साथ भी उसका कम्युनिकेशन होता रहा है, तो आपको उसने बताया नहीं मामला क्या है, क्या उसके जहन में चल रहा है? नहीं नहीं, इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। असल में इस फैमिली का हमारे घर आना जाना नहीं था, हमारी फैमिली का इस घर में आना जाना नहीं था। अल्ताफ़ की हद तक था इनका रिलेशन, जो भी था। अल्ताफ़ इधर आता था, अल्ताफ़ इनके पास रहता था, कभी इधर होता था, कभी घर में होता था। अब लास्ट टाइम ये 12 तारीख से 18 तारीख तक वापस घर नहीं गया। हम फ़ोन पे कभी कभी बोलते थे तो घर आ जा, कभी घर भी चक्कर लगा लिया कर, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, कल आता हूँ, आ जाता हूँ। यानी 1 हफ्ते से वो आपदा के घर था, अपनी बीवी के घर था। ये उसका अपना घर था, बीवी का उसका घर था, उसी के अपने नाम था या इसने लेकर दिया था? इस मामले में हमारे कोई इल्म नहीं है कि इसने पेमेंट अदा की थी या आपदा की पेमेंट थी या आपदा के बाप की पेमेंट थी, लेकिन हमारे सुनने में ये आया है कि आपदा के नाम पे मकान है। जो बातें सामने आ रही हैं, उसके वालिद और आपदा के वालिद और वालदा यही बता रहे हैं कि तनाज़ा ज़मीन का था, उसी जगह का था, उसी घर का था। आपका भाई ये चाहता था कि बेचकर जो पैसे हैं उसको दे दिए जाएं। क्या हकीकत है? सर इसमें कोई हमारे इल्म में नहीं है। असल में वो इधर की बात हमको नहीं बताता था। इसका कोई झगड़ा था, रंजश थी, लड़ाई थी, जो भी था, वो मियाँ बीवी का अपना मामला था, हमारी उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है और ना ही हमारे इल्म में, ना ही उसने कभी हमसे इस घर की बात हमारे साथ कभी शेयर की थी। अनाथ था, कोई झगड़ा था या उसका किसी और के साथ कोई ताल्लुक़ था, इसको शक था, क्या था? डिप्रेशन में बहुत रहता था, ओमान में भी होता था ना, 24 घंटे इसका जो है ना वो ईमो व्हाट्सअप बिज़ी रहता था। जब भी हम कॉल करते थे बिज़ी बिज़ी बिज़ी। गांव में भी 1-2 बार जब क्या है तो बिज़ी। 2 मिनट घर में बैठा है, इधर से कॉल आ गई, उधर से कॉल आ गई, दूर जाके कॉल सुननी है। प्रेशर में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, लेकिन उसने हमारे साथ कभी कोई बात शेयर नहीं की तक मुझे क्या मसला है। पहली बीवी है वो लड़ती थी, कभी कभार झगड़ा हो भी जाता था, घर में होता था झगड़ा, कभी कभार हो भी जाता था। इसके ऊपर कि वो दूसरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, इस वजह से होता था? इस मामले में नहीं, वो कभी कभार झगड़ा इस बात पे होता था कि आप घर टाइम नहीं देते हैं, आप अक्सर बाहर ही रहते हैं, अक्सर बाहर रहते हैं, कभी घर में भी रह लिया करो। एक भाई जिसने खुद ये कन्फेस भी किया कि उसी ने कत्ल किया, एक नाहक कत्ल किया। आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आप भाई का साथ देने में खड़े हैं या उसके घर वालों के साथ खड़े हैं? मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं अपने हक पे हूँ
कि उसने अगर किया है तो उसने गलत किया है, वो अपने जुर्म की सज़ा भोगे। अगर उन्होंने मर्डर किया है तो वो अपने हक पे हैं, वो अपना फैसला करवाएं जो करवाना चाहते लेकिन हैं। इल्ज़ाम आप पर भी है कि आप वहाँ पर मौजूद थे। देखने वाले ये गवाही देते हैं कि आप भी वहाँ पर मौजूद थे, लाने और ले जाने में आपका किरदार था और प्लानिंग में भी आपका किरदार था। नहीं सर, मैं बिल्कुल मौके पे नहीं था, मैं अपने गांव में था। मेरे गांव में अब आप पूछ सकते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन गवाही देंगे, मौके के चश्मदीद गवाह। वालिद और भाई हैं, उनका ये बयान है कि वजह जो अनाहत थी वो ये थी कि वो जो मकान है आपदा का, उसके ऊपर इसकी नज़र थी। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई। उसकी प्रॉपर्टी तो थी मकतूला के नाम, उसके नाम मकान भी था, तो उसके तो वो अलहदा एक ज़हर है जो वरासत चढ़नी थी, वो इसमें तो इसका हक नहीं बनने वाला था। ऐसा उसमें सिर्फ उसको नहीं मदद रखा जा सकता कि मकान लेने के लिए उसका मर्डर किया था। इसमें उन्होंने भी यही बयान दिया था, मुदई ने भी, कि उसको शक था इसके करैक्टर पे। और जब ये अरेस्ट हुआ बाद में, उसमें भी इसने अपनी स्टेटमेंट दी कि मुझे इसके करैक्टर पे शक था और इसकी बुनियाद पे मैंने इसको कत्ल किया था पिस्टल के फायर करके। जी सर, क्या कहेंगे इसमें जो उसका भाई है अल्ताफ़ का, अब्बास, उसका क्या किरदार नज़र आता है? क्या चीज़ें, क्या शवाहिद मिले हैं अब तक पुलिस को? उस पर हमने काफ़ी वर्कआउट किया है, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कॉल रिकॉर्ड और दीगर टूल्स को भी इस्तेमाल किया है। उसके बारे में काफ़ी और भी एविडेंसेस देखी जा रही हैं और उसके किरदार का तयन बकाया है। तो बज़ाहिर मौके पे तो उसका होना फ़िलहाल साबित नहीं हो रहा। हाँ, किसी किस्म की अयानत और कोई और रोल सामने आता है तो वो अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो देखा जा रहा है। जो ही अगर वो इसमें शामिल है तो उसको इंशाल्लाह उसको भी कैफ़े किरदार तक हम पहुँचाएँगे। किसी किस्म की वो भी रियायत का मुस्तहक नहीं है। यहाँ का वो मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, यहाँ आया वो थोड़े दिनों के लिए, 20 दिन हुए थे उसे यहाँ पर आए हुए। हथियार उसने कहाँ से लिया? ऑब्वियसली किसी ने तो उसे हथियार ला कर दिया होगा, हो सकता है वो भाई या कोई और शख्स। क्या चीज़ें सामने आई? वो वेपन तो इलीगल है, उसका लाइसेंस तो है नहीं, तो ये उसके बारे में कहता है कि किसी मैंने पठान से लिया था, तो ये रूटीन की स्टेटमेंट है। वो ज़ाहिर है किसी ने किसी को इसको प्रोवाइड किया है, इसने नाजायज़ पैसे दे के नाजायज़ रिसोर्सेज से असला ख़रीदा है, वो नाजायज़ असला था, उसका अलहदा FIR हो गई है, उसका इसके पास लाइसेंस नहीं था। विहाड़ी की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा क्राइम नज़र आता है, और ख़ास तौर पर जो गैरत के नाम पर कत्ल, शक की बुनियाद पर कत्ल है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? समटाइम्स ऐसा होता है खुद ही किलर हैं, खुद ही उसके वारिस हैं और वो नहीं कार्रवाई कराना चाहता, तो वो हम लोग उसमें स्टेट मुदई बनती है, उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर किए हैं हमने। लुडन में भी पिछले दिनों एक केस रजिस्टर हुआ है, तो उसमें भी हमने उनको, जो उसके वर्षा है उसके भाई ने कत्ल किया था, उसको भी चालान किया गया है। तो इस तरह में जहाँ वो लोग खुद मुदई नहीं बनते तो हम उसमें स्टेट इसको डिस्करेज करने के लिए हम लोग खुद मुदई बन जाते हैं और इसको इंतहाई वहशियाना इक़दाम है, इसको हम कंडेम करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और मुलज़िमों को अरेस्ट भी करते हैं और कैफ़े किरदार तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना यही था, DSP साहब मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे कि पुलिस अपनी भरपूर कोशिश करती है कि इस हवाले से जितने भी केसेस हैं, गैरत के नाम पर होने वाले जितने भी कत्ल हैं, उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत भी की जाए और कार्रवाई भी की जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ डे हमारे सामने देखने को यही मिलता है कि वही मुल्ज़िमान कुछ अरसे के बाद जब उनके मुद्दाई उन्हें माफ़ कर देते हैं तो खुलेआम फिर रहे होते हैं। शक की जो दरार है वो किस तरह से इमारतों को खोखला कर देती है इस केस में, बल्कि इस तरह के जितने केसेस हैं जिसमें शक की बुनियाद पर खावंद अपनी बीवी को, भाई अपनी बहन को कत्ल करता है, हम देखते हैं कि सिर्फ शक होता है जिसकी बेस के ऊपर ये चीज़ें सामने आती हैं और ये इंतहाई स्टेप उठाए जाते हैं। भाई का किरदार कोई नज़र आ रहा है? फ़िलहाल सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे इनकी रिपोर्ट्स हैं, कॉल डाटा चेक किया जा रहा है, पुलिस की तफ्तीश के अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई जो अब्बास है वो साथ नहीं है, जबकि लड़की के वरसा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पिस्टल भी उसी ने फराहम किया है। और इसमें कुछ चीज़ें अगर देखा जाए बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के तौर पे, तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक बंदा जो 2-2 ढाई साल के बाद आता है, तो उसके पास यहाँ से कैसे चीज़ें, पिस्टल या इस तरह की सारी चीज़ें कैसे परवाएं, ये कोई ना कोई उसका प्रोवाइडर तो है, प्रोवाइडर ज़रूर है। इसमें अब पुलिस की देखी जा सकती है कि पुलिस क्या करती है। पुलिस उस बंदे को तलाश करती है या अब्बास के जिसके ऊपर शक किया जा रहा है ये वही शख्स है या कोई और बंदा है जो उसको पिस्टल फराहम करने वाला है। चूँकि ये चंद दिन पहले आया और
हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस दिन इसने फायर मारा है, अपनी बीवी को कत्ल किया है, उसी दिन इसकी फ़्लाइट भी थी। तो पुलिस ने इसको वापस जाना था, इसने उसी दिन वापस अगर ये गिरफ्तार ना होता तो ये वापस जा चुका होता और ये केस फिर यूं ही जो है वो पेंडिंग में आ जाता और यूं ही फाइलों के अंदर ही रहता। मोहब्बत की शादी 6 साल पहले की गई, जिससे उसका एक बच्चा था, और अल्ताफ़ ने भी पहले एक और शादी की हुई थी जो कि उसकी फैमिली में हुई थी। तकरीबन इस शादी से थोड़ा अरसा कबल उससे भी उसके बच्चे हैं, इससे भी उसकी औलाद है। मोहब्बत की शादी इसके घर में आकर इसी के साथ वो रह रहा है और बाहर से जो कमाता है वो इसी को ला कर देता है। उसके बाद कोई वजह तो होगी ना, कोई शख्स इतनी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, घर से छुप कर शादी भी की, रखा भी हुआ, आता भी है उसके पास, उसको प्रॉपर टाइम भी देता है। कोई ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं अहले इलाका से या कुछ बातें सामने आई हैं कि उस खातून के किसी और के साथ मरासिम थे या किसी और का आना जाना साबित होता है? इस तरह का फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ रही कि उसके किसी के साथ नाजायज़ मरासिम हो, लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी कि उसका यूं छुप के आना अल्ताफ़ का 2 साल कबल और फिर उसके बाद जो है वो वापस चले जाना और अचानक यूं आके प्लानिंग करना, क्योंकि 1 माह के अंदर या 10 दिन के जितना भी उसने यहाँ पे टाइम गुजारा है उसी ड्यूरेशन में उसका प्लान करना और उसको सरअंजाम भी दे देना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इतना बड़ा ये सारा प्लान किया और उस खातून ने उसको उस दिन अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आता जी बिल्कुल, वो अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आता है। देखिए कितनी बेरहमी है कि अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ा जा रहा है और कुछ नॉर्मल चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन उसके अंदर क्या आग जल रही थी कि उसने कत्ल करना है अपनी ही बीवी को, अपने बच्चों की माँ को कत्ल करना है। और उसी अनाद में उसने ये पूरा प्लान किया। और प्लान में कौन कौन शामिल था ये इन्वेस्टिगेट करना, इसके साइंटिफिक एविडेंस लाना पुलिस का काम है, जो कि पुलिस इस हवाले से काम कर रही है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और उस हवाले से जो चीज़ें होंगी वो सामने लाई जाएंगी। लेकिन बात ये है कि शक कितना कमज़ोर कर देता है रिश्तों को, जो कि हम देखते हैं अक्सर इस तरह की जितनी स्टोरीज़ होती हैं उसमें यही होता है कि शक बेस बनता है और जान ले जाता है कितने लोगों की।